मैम, जो आप राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज़ भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे। The precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers, and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. Homologous third dose, homologous precautionary dose. Those who have received Covaxin will receive Covaxin. Those who have received the primary 2 doses of Covishield will receive Covishield. That's the way we are proceeding. लव अग्रवाल जी ने क्लियरली हमें समझाया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं और ये प्रोसेस शुरू होगा। सो कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड। इसके साथ साथ हम ये भी अवगत कराएंगे कि जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे वैक्सीन्स के बारे में, सो कॉल्ड मिक्सिंग की, सो कॉल्ड हेट्रोलोगस अप्रोच, वो जैसे जैसे डेटा सामने आएगा, साइंस सामने आएगी। हुआ है, यूए हुआ है, उसको हमने यहाँ चिन्हित किया था। The important point regarding molnupiravir is the following. First of all, it is based, the US has approved it only based on 1,433 patients with a 3% reduction in serious moderate disease when given in mild cases. However, we have to remember that this drug has major safety concerns. It can cause teratogenicity and what you have mentioned, mutagenicity, and it also can cause cartilage damage and can also be damaging to muscles also. More important that it has to be effective, contraception will have to be done for 3 months if this drug is given for male and female, because the child born could be problematic with teratogenic influences. So it is not included in the National Task Force treatment. The WHO has not included it. The UK has not included it as of now. I hope that answers your question. We have still concerns about pregnancy, lactation, children, soft tissue injury, reproductive age group, history of infection, vaccinations, all those issues are there. Whatever benefit in those 1,433 patients was on unvaccinated individuals and only 3% reduction from mild to moderate disease. So as of now, the current recommendation stands that we will, it has not part of the National Task Force treatment, and we have debated on it twice. We are going to have further debate on it to discuss whether there is any possibility. Yeah, I think the most important thing that you have yourself answered is that any mask is better than no mask. So I think that is the most important point to remember. The mask has to be worn and has to be worn when in an enclosed space. It may not be worn in an open field when you're far away from people. If you're a single person there, you don't need to wear it. But in a closed space, you have to wear it. More important also to remember is that the use of mask has to be absolutely essential whenever there is home isolation. If there is a family member who is tested positive for COVID-19 today, then everyone in the family should be wearing masks so as to prevent the transmission of this. And N95 mask should be worn? Let me clarify. जो अभी आपको दिखाया भी गया है, we can be specific.
हमने ये कहा है कि होम केयर में जो है उसके लिए क्लैरिफाई करा गया है और वो हेल्पफुल है। पेशेंट शुड वेयर अ ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, पेशेंट, ओके। पहले उसको आज क्योंकि नया लेके आए हैं तो अफेक्टेड या सस्पेक्टेड में हम ट्रिपल लेयर मास्क को अब क्लियरली रिकमेंड कर रहे हैं। और केयर गिवर के लिए ट्रिपल लेयर मास्क होगा और ये भी लिखा है हमने कि N95 को आप कंसिडर कर सकते हो। जनरल सिचुएशन में जैसे सर ने कहा वो हम वहाँ पे एनी मास्क इज़ फाइन, ऑब्वियसली ट्रिपल लेयर मास्क इज़ more effective and N95 is even more effective, but there for general precaution any mask is acceptable। तब वो कुछ पूछ रहे थे और जैसे कि हमने आपको गाइडलाइन में दिखाया है, ये गाइडलाइन फोकस्ड है उन केसेस के लिए जहाँ पर कि पेशेंट आइसोलेशन में है और केयर गिवर उसका ध्यान रख रहा है। उस समय पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल करें, या पेशेंट के साथ आप संसर्ग में जब आते हैं, ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आप पेशेंट को एज ए केयर गिवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पॉसिबल हो तो N95 मास्क भी यूज़ करें। और इससे पहले भी कई बार बताया गया कि एज ए बैरियर प्रोटेक्शन जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम जो क्लोथ मास्क यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने इससे दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से इसके एडहेरेंस के बारे में बात करती है। हमारा स्टेट से कंटिन्यूस बेसिस पर यह डायलॉग बना रहता है और हम आपसे ये सबमिट करना चाहेंगे कि जब भी स्टेट के साथ हमारा डिस्कशन होता है एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और उससे रिलेटेड क्या एक्शन फील्ड पर लिया जा रहा है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हर बार होती है। एक्शन क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंस स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है तो हम उनको उनकी नॉलेज में भी लाते हैं, उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे सोशल वैक्सीन के रूप में यूज़ ऑफ मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्फेक्शन को रोकने के लिए।